آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں محرم الحرام کی۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے علم اور تعزیے کے جلوس نکالے گئے ہیں۔ عزاداروں کی جانب سے ماتم اور نوحہ کی گئی ہے۔ ملتان میں 8 محرم الحرام کے سلسلے میں قدیم علم پاک کے جلوس ممتاز آباد سے برآمد ہوا۔ جلوس میں گھر گھر سے علم نکالے گئے۔ عزاداروں نے سینہ کوبی کر کے نوازِ رسول کو پرسہ پیش کیا۔ مختلف مقامات پر سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ بہاولپور میں 8 محرم الحرام کا جلوس سید ممتاز حسین نقوی کے آستانے سے برآمد ہوا۔ ہزاروں عزاداران نے شرکت کی۔ ریہاڑی میں 8 محرم الحرام کا جلوس قصر ابو طالب کچا امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ احمد پور شرقیہ کا مرکزی جلوس آستانہ نظر حسین شاہ سے برآمد کیا گیا۔ ڈی ایس پی آصف رشید اور اسسٹنٹ کمشنر عثمان گیلانی نے جلوس روٹس کا دورہ کیا۔ جلال پور پیروالا میں شہزادہ قاسم علیہ السلام کا مرکزی ماتمی جلوس حیدری بازار سے برآمد ہوا۔ عزاداروں کی جانب سے ماتمداری اور سینہ کوبی کی گئی۔ کہروڑ پکا میں 8ویں محرم الحرام کا جلوس سید نیر شاہ کے گھر سے برآمد ہوا۔ جلوس سید اکبر شاہ کے گھر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ بہاول نگر میں شہزادہ قاسم کی مہندی کا قدیمی جلوس امام بارگاہ باب علی سے برآمد ہوا۔ جلوس امام بارگاہ جامعۃ الزہرا پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ لیا میں 8ویں محرم الحرام کا روایتی جلوس امام بارگاہ دربار عارف شہید سے برآمد ہو کر امام خانہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ فوکل پرسن وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت علی گیلانی، ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء اور ڈی پی او سید علی رضا نے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ 8 محرم الحرام علم حضرت عباس علیہ السلام ملنی کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سید کاشف رضا ارد شریف موغلہ سے برآمد ہوا۔ جلوس صدر بازار پہنچا تو نماز ظہرین ادا کی گئی۔ نماز ظہرین کے بعد جلوس امام بارگاہ محلہ خواجگان پہنچا جہاں ملنی ادا کی گئی۔ ملنی کے بعد مجلس عزا منعقد کی گئی۔ ناصر رحیم جارکان میں شیعہ سپریم کونسل کے مرکزی دفتر میں امام حسین کانفرنس جاری ہے۔ تمام مذاہب کے رہنما کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کے لوگ اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر۔ عمر خان میں شیعہ سپریم کونسل کے مرکزی دفتر میں اس وقت تمام مذاہب کی جو ہے امام حسین کانفرنس جاری ہے۔ اس کے جو میزبان ہیں صدر سید بابر زماں ہمارے سے موجود۔ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ایام محرم ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس میں ان دنوں میں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جو ہمارے بارڈر کی سچویشنز ہیں، اور بالخصوص آپ نے دیکھا کہ سانحہ بھنگ ہوا، یہاں پر ایک واقعہ ہوا جس میں مندر کا اور امام بارگاہ کا مسئلہ ہوا، تو اس کے لیے میں ضروری سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے دوست ساتھی بھائی ہمارے تمام مسالک سے، تمام مذاہب سے یہ نمائندہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ امن کے لیے کام کیا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ ان کے یہاں پر ایک چھت کے نیچے اکٹھا ہونا دوسرے ملکوں کے لیے، ان طاقتوں کے لیے ایک ایسا پیغام یہاں سے ہمارے جانا چاہیے جن کو مقصد یہ ہے کہ پاکستان افراتفری کا شکار ہو، لیکن الحمدللہ تمام مذاہب، تمام مسالک کے یہ لوگ یہاں پر زندہ ہیں، اور ہم یہاں سے پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں سے امن کی ہی خوشبو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ مزید ترقیاں کرے گا، اور اس میں جو ہے وہ لوگ جو شرپسند شر پھیلانا چاہتے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بہت شکریہ۔ بڑے صاحب کیا کہنا چاہیں گے پی ٹی آئی جو ہماری گورنمنٹ ہے امن و امان کی صورت کو برقرار رکھنے کے حوالے سے، اور آج کی اس کانفرنس اس ایونٹ کے حوالے سے کیا کہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی ہماری یہاں جو حاضری ہے یہ ہر سال کی طرح اہل تشیع حضرات کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے تو آج ایسے جیسے بابر صاحب نے کہا ہے کہ تمام مسالک، تمام مذاہب کے لوگوں کا اکٹھے ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ بھونگ والا جو واقعہ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اسے دفن کر دیا۔ عامر بھٹی آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں محرم الحرام کے سلسلے میں امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب ثاقب ظفر، علامہ مہروی، مختوم غوث گیلانی اور دیگر نے شرکت کی۔ جبکہ محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ ملتان میں محرم الحرام کے سلسلے میں سرکٹ ہاؤس میں امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر، سید علی رضا،
ADC Qamar Zaman Kesarani, Vice Chancellor National Medical University, SSP Investigation Captain Retired Amir Khan Nayasi, Mazhar Javed, Jabbar Mufti, Shaukat Ishfaq, Allama Mehravi, Makhtoom Ghaus Gilani, Makhtoom Shamsi, Mufti Ghulam Mustafa Rizvi, Qari Saifullah Abid समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने शिरकत की। नासिर मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी की रहीम यार खान आमद हुई। मातमी जुलूसों के रूट शेख ज़ैद अस्पताल इमरजेंसी वार्ड और कंट्रोल रूम का दौरा किया है। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जिले की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पिताफी ने रहीम यार खान का दौरा किया। रेलवे हुसैनी इमाम बारगाह के मातमी जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद, DPO असद सरफराज और AC उस्मान चौधरी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी उनके हमरा थे। मुशीर सेहत ने जिली कंट्रोल रूम का दौरा किया। उन्होंने शेख ज़ैद हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड में मरीजों को दी जाने वाली इलाज मौलजा की सहूलियात का भी जायजा लिया और इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। उनका कहना था कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात काबिल तारीफ हैं। तो सिक्योरिटी के बेहतरीन अरेंजमेंट किए गए हैं। जितने भी इनके प्रोसेशन है उनको कवर करने के लिए कैमराज लगाए गए हैं। साउथ पंजाब को डेवलपमेंट पैकेज किया और पहली दफ़ा के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज मुतारफ कराया गया है। वो इलाके जो तरक्की में पीछे रह गए थे उनको काफ़ी हद फंड फराहम किए जाएंगे। मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पिताफी का कहना था कि वो जनूबी पंजाब के शहरियों का मियार जिंदगी बेहतर करने के लिए कोशां हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। नासिर रहीम यार खान में योम आशूरा पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। सिटी सदर, सर्कल पुलिस, एलीट फोर्स और रेंजर्स के जवानों ने शिरकत की है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी और DSP सिटी मोहम्मद असलम खान की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। सिटी सदर सर्कल पुलिस, एलीट फोर्स और रेंजर्स के जवानों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च खानपुर अड्डा, अब्बासिया टाउन, शाही रोड, इमाम बारगाह, लंगर हुसैनी, बेल्जियम चौक, वायरलेस पुल, अड्डा गुलमर्ग, फौजी छोनी चौक, जुगनू चौक से होता हुआ वापस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी का कहना था शहर में हर सूरत अमन बरकरार रखा जाएगा। यही पैगाम लोगों को दिया गया कि सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। उसमें कोई किसी किस्म की कोताही जो है पुलिस की जो अनवारंटेड सपोर्ट हमारे साथ है जिसमें कि किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि एक लोगों को मैसेज दिया जाए कि हम ऑन द रोड्स हैं, हम उनकी सपोर्ट के लिए, उनके फेवरेबल हालात के लिए, तमाम जुलूसों मजालिस के लिए हम सड़कों पर मौजूद हैं। DSP मोहम्मद असलम खान का कहना था कि शर पसंद अनासर को रोकने के लिए इंतजामिया और फोर्सेस एक पेज पर हैं। कि हमारे कोई शहर के 28 जुलूस थे और 58 जो थी वो मजालिस थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो जुलूस और मजालिस ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने सिक्योरिटी जो के हिसाब से फुल प्रूफ ड्यूटी लगाई हुई है। फ्लैग मार्च में शामिल सायरन बजाती गाड़ियां इस बात का ऐलान कर रही थीं कि तमाम फोर्सेस शहर में अमन कायम रखने के लिए अलर्ट हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सिद्दीक, रहीम यार खान। रूह और कल्ब की ये प्यास बुझा देते हैं। फातिमा तो ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। मुल्तान में हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में अलम पाक की तैयारियां जारी हैं। ये शबी कैसे बनती है और तैयारी में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। मुहर्रम अल हराम के जुलूसों में बुलंद किए जाने वाले अलम पाक वाक़े करबला की बड़ी निशानियों में से एक है। मुल्तान में शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने और हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में अलम पाक की तैयारियां जारी हैं। मुल्तान में हाफिज जमाल रोड के रिहायशी 45 साला खादिम हुसैन पिछले 18 साल से अलम पाक तैयार कर रहे हैं, जो मातमी जुलूसों में बुलंद और इमाम बारगाहों और घरों पर लगाए जाते हैं। 18 साल हो गए हैं और हमारे काम की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन दिनों में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे लिए ये काम मुकम्मल करना, कंप्लीट करना मुश्किल से बहुत मुश्किल हो जाती है। ये काम शोहदाए करबला की याद के लिए कर रहे हैं। अलम की तैयारी में खास किस्म के सुर्ख और काले कपड़े पर मुख्तलिफ रंगों के धागों और मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। कारीगर के मुताबिक मुहर्रम अल हराम के दिनों में डिमांड और काम बढ़ जाता है। इसके अलावा जुल्फकार और जुलजना समेत दीगर शफियात भी बनाई जाती हैं। तो डिमांड ज़्यादा होती है तो हमारे अलम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, बड़े शहरों में, खासकर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, फिर छोटे छोटे शहर जो हैं कस्बे वगैरह, खानेवाल हो गया, शुजाबाद हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, इस तरह के शहरों में जाता है हमारा काम बन के पूरे पाकिस्तान में।
तैयार किए गए ये अलम न सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्क भर में हदिये के तौर पर फरोख्त किए जाते हैं। शोहदाए करबला को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जहां पे ताजियों की तैयारी का मरहला आखिरी मराहिल में है, वहां पे अलम पाक की तैयारी भी जारी है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। नाज़रीन, 8 मुहर्रम उल हराम के दिन को मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से याद रखा जाता है। गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने अलम की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की है। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। अलम की इस्लाम में बहुत अहमियत है। पहले ज़मानों में जंगों में अलम की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की जाती थी। गाजी अब्बास अलमदार ने भी करबला में हजरत इमाम हुसैन का साथ देते हुए अलम की भरपूर हिफाजत की। जैसे कि आप जानते हैं कि मौला इमाम हुसैन ने मौला गाजी अब्बास को अलम दिया, तो उसी की निस्बत से हम ये अलम उठाते हैं और जुलूसों में भी जाते हैं और मातम भी करते हैं। अलम जो है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफर तैयारत को दिया, फिर वहाँ से मौला अली को मिला, वहाँ से करबला में जो है ना मौला हुसैन ने मौला अब्बास को अलम दिया। मुहर्रमुल हराम में तमाम जुलूसों की क़यादत अलम वालों के हाथों में होती है। गाजी अब्बास अलमदार ने करबला में दोनों बाजू कटवा लिए, लेकिन अलम की हुर्मत पर आंच नहीं आने दी। क़यामत के रोज़ मौला रसूल पाक मौला अली अलैहिस्सलाम को एक अलम देंगे, जो उस अलम के साए में होगा अमान में होगा, और जो उस अलम के साए में नहीं होगा उसे अमान हासिल न हो सकेगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। राधनपुर में शहजादा जनाब अमीर कासिम की सेज की शबी बरामद की जाती है, जिसका सिलसिला 3 नस्लों से जारी है। करबला के मैदान में हजरत इमाम हसन के फर्जंद शहजादा अमीर कासिम की अजीम कुर्बानी की याद में सेज की शबी बरामद की जाती है। मुंतज़मीन का कहना है कि 3 नस्लों से ये सिलसिला जारी है। बचपन से हम लोग देख रहे हैं, हमारे जो बुजुर्गान हैं वो इसको तैयार कर रहे हैं। अब उन्होंने ये जिम्मेदारी हम तक मुंतकिल की है। अब ये जिम्मेदारी आने वाली नस्ल को हम मुंतकिल करें कि ये जो याद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और इस शहजादे की, ये आने वाली नस्लों तक हमारी नस्लें भी हैं वो इसके जिम्मेदारी संभालें। सेज की शबी बरामद करने का ये सिलसिला अब नई नस्ल में मुंतकिल हो चुका है, जो आबा व अजदाद की जानिब से मिलने वाले इस मिशन पर फख्र महसूस करते हैं। ये एक फ़ख्र की बात है हमारे लिए। बचपन से ही हम लोग मतलब छोटी एज से ही हमें पता है कि घर से शबी बरामद होती है। हम खुद भी इसमें मतलब काफ़ी भरपूर मतलब हिस्सा डालते हैं। शहजादा अमीर कासिम की सेज की शबी की तैयारी इंतहाई निफासत से की जाती है ताकि सेज खूबसूरत तरीन नजर आए। शहजादा अमीर कासिम की सेज की ये शबी तैयार करके जहां मुंतज़मीन उनकी अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं, वहीं पर हज़ारों की तादाद में आने वाले ज़ायरीन इस शबी की ज़ियारत करके ज़हनी व कल्बी सुकून भी हासिल करते हैं। कैमरा टीम के हमरा खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। ये करबला थी, इसे पहले कौन जानता था। लहू पिलाकर खासो आम हमने किया। मुल्तान में घंटा घर चौक पर हर साल की तरह वाक़या करबला से मंसूब तबर्रुकात सजा दी गई। अलम पाक, झूला अली अस्कर, शहदाए करबला के रोज़ों की शबीहात की ज़ियारत करने के लिए अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से घंटा घर चौक मुल्तान में तबरुकात सजा दी गईं, जिनमें अलम पाक, झूला अली अस्कर, शोहदाए करबला के रोज़ों की शबीहात शामिल हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए अज़ादारान की बड़ी तादाद मौजूद होती है। ये जो अलम पाक देख रहे हैं, ये हज़रत पीर लाल शाह बादशाह की जगह खरीद है। ये घंटा घर पर यहाँ पे तकरीबन हर शब जुमेरात ज़ेर क़यादत मखदूम सैयद हसन रज़ा मुशद्दी की क़यादत में ज़ेर तमाम यहाँ दुआ होती है, लंगर का इंतज़ाम होता है। हर अज़ादार मातमीन यहाँ शब जुमेरात को आया करते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को आस्ताना लाल शाह से बरामद होने वाला जुलूस वापस इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में जुलजना और ताजिये की बरामदगी पर बड़ी तादाद में अज़ादारान शोहदाए करबला की याद में सीना कोबी और जंजीर जनी भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है 10 मुहर्रमुल हराम का आस्ताना हज़रत पीर लाल शाह बादशाह का जुलूस बरामद होकर घंटा घर इस अलम पाक पर तकरीबन 2 से 3 घंटे का इनका क़याम पजीर होता है इस अलम पाक पर। और इस टाइम ये जो अलम पाक को आप देख रहे हैं, सारा निज़ाम, ये सारा सिस्टम वगैरह मखदूम सैयद हसन रज़ा मुशद्दी बादशाह ने किया। घंटा घर चौक में शबीहात सजाने का सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है। ख़वातीन इन शबीहात पर अपनी मन्नतें भी मांगती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीदा तारिक, मुल्तान। आज तक खुद पे रो रही है फुरात, पानी पानी हो रही है फुरात।
शहरी औलिया में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल हुसैन आगाही बाजार में गुज़श्ता 500 साल से पानी और शरबत की सबील लगाई जा रही है। यकम से 13वीं मुहर्रम उल हराम तक पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं। मुल्तान शहर में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लग गईं। हुसैन आगाही बाजार में गुज़िश्ता 500 साल से मुसलसल पानी और शरबत की सबील लगाई जा रही है। यकम से 13वें मुहर्रम उल हराम तक पानी और शरबत की सबील लगाई जाती है। ये सबील माशाल्लाह सादात फैमिली ने बनाई हुई और काफ़ी अरसे से लोग यहाँ से फैज़याब भी होते हैं और लंगर सबील इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सदियों पुराना सिस्टम है, करबला के हवाले की याद है। मुंतज़मीन का कहना था कि सुबह 8 बजे से रात 1 बजे तक सबीलों से लोग पानी पीते हैं। सबील लगाने का मकसद ये बताना है कि मुसलमान पानी बंद करने के बजाय पानी पिलाते हैं। हमारे बुजुर्ग सालों से इसी मुकाम पर सबील लगा रहे हैं। यहाँ पे हम पानी लगा के सबील पिला के लोगों को ये बताते हैं कि करबला में लोगों ने जैसे इमाम हुसैन पर, उनके आल औलाद पर पानी बंद किया था, हम उस चीज़ को मुखालफत करते हुए लोगों को बताते हैं मुसलमानों का ये काम नहीं होता। अहले इलाका का कहना था कि वो भी बचपन से हर साल यकम से 13वें मुहर्रम उल हराम तक इसी जगह पर सबील देखते आ रहे हैं। हुसैन आगाही मेन बाजार में गुज़िश्ता 500 सालों से मुसलसल यकम मुहर्रम उल हराम से 13 मुहर्रम उल हराम तक करबला के प्यासों की याद में सबील लगाई जाती है, जहाँ से हर आने जाने वाले राहगीर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, शोहदाए करबला से इजहार अकीदत के लिए मुहर्रम उल हराम के दौरान सबीलें लगाई जाती हैं। मुल्तान में कदीमी मिट्टी के मटकों वाली सबील आज भी लगाई जाती है, जहां से अकीदतमंद अपनी प्यास बुझाते हैं। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। मुहर्रम उल हराम के आगाज पर शोहदाए करबला की प्यास की याद में सबीलें लगाई जाती हैं। मुल्तान में मिट्टी के प्यालों वाली सबील अपनी इनफरादियत की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मिट्टी के बर्तन में सुन्नत है हमारे इमाम की, इसलिए ये मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल करते हैं। मासूमीन करबला की भूख और प्यास का तस्वुर जहन में लाकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के चाहने वाले पानी के साथ साथ शरबत की सबील भी लगाते हैं। अकीदतमंदों की कसीर तादाद पानी की सबील से मुस्तफीद होती है। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के मैदान में प्यास की जो शिद्दत बर्दाश्त की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुहर्रम उल हराम के दौरान जहां मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं, वहीं पर मट्टी के बर्तनों में पानी पिलाने की रिवायत भी बहुत कदीम है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्तान में फनकारों के घरों में मजालिस और नजरो न्याज का सिलसिला जारी है। मुल्तान की मारूफ अदाकारा वफा खान ने भी मुहर्रम उल हराम पर शोबिस सरगर्मियां करक करती हैं। ये मनाजिर है मुल्तान की मारूफ अदाकारा वफा खान के घर के, जहां मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्तान के शोबिस सितारों ने शिरकत की। अदाकारा वफा खान का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस में शोबिस सरगर्मियां तर्क कर दी हैं। मद्दाहों को भी मुहर्रम उल हराम के एहतराम का दर्स देती हूँ। शहादत के दिनों में अगर एहतराम नहीं करेंगे तो कोई भी, मैं नहीं समझती कि कोई भी फिर मोमिन है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत एहतराम करना चाहिए। कम से कम अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 10 दिन टोटली आपको एहतराम करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन रेगुलर शहादत की होती है। फनकारों का कहना था कि मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही उनकी आंखें नम और चेहरे मुरझा जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमारे लिए मशाल राह है। दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की मिसाल नहीं मिलती। काफिले भी नहीं जा रहे थे, इस वजह से मैंने जो मजलिस थी घर में करवाई, और मैं बकाया जो दिन थे उनमें मजलिस में जाती हूँ। रेगुलर रूटीन से मजलिस में जाती हूँ। मजलिस मेरे लिए ऐसे है कि जैसे सांस लेना होता है। अदाकारा का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में वाक़े करबला की याद में मजालिस का इनेकाद और जुलूस निकालते हैं और गमे हुसैन में नढाल रहते हैं। मुहर्रम उल हराम बातिल पर फतह का दिन है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करता है। यही वजह है कि मुल्तान की शोबिस सरगर्मियाँ मुल्तान के तमाम एक्टर्स ने ख़त्म कर दी हैं और अपने घरों में मुकीम हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। नाज़रीन, आगे बढ़े, आपको बताएं मियांवाली में भी मुहर्रम उल हराम के दौरान कब्रों पर लगाए जाने वाले कतबों की मांग बढ़ गई है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट।
हराम में कब्रों पर नस्ब किए जाने वाले संगे मरमर से बने कत्तों की मांग में इजाफा हो गया। खरीदारों का कहना है कि मरहुमैन की कब्रों पर लगाने के लिए कत्बे खरीदने आए हैं। मरहुमा वो इंतकाल कर गई हैं, तो मैं उनके लिए ना कोई कत्बा यहाँ पे पसंद करने आया हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफी खूबसूरत खूबसूरत कत्बे मौजूद हैं। दुकानदारों ने बताया कि कत्बों की कीमत 1000 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक है। संगे मरमर को काट कर मुख्तलिफ रंग के कत्बे बनाए जाते हैं। इनका जो रेट है ना वो तकरीबन 1000 से लेकर 6000 तक मैक्सिमम रेट चल जाता है कदमों का। तो हर किस्म के इसमें साइज हैं, इसमें सनी वाइट का पत्थर है, फ्लावर है, ग्रेनाइट है, सुपर वाइट, बहुत से ऐसे पत्थर। कातिब ने बताया कि लिखाई के बाद खुदाई की जाती है और फिर रंग भरा जाता है। उसके बाद रगड़ाई करके नामों को वाजे किया जाता है। इसकी लिखाई हम करते हैं, फिर उसके बाद इसकी खुदाई होती है। मार्बल की खुदाई के बाद प्रोसेस है इसका पेट भरने का। पेट जब खुश्क हो जाता है उसके बाद रगड़ाई इसकी होती है ग्राइंडर से, तभी जाके ये मुकम्मल होती है। दुकानदारों ने मजीद बताया कि मुहर्रम के इख्तिताम तक कत्बों की फरोख्त जारी रहती है। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कत्बा जात पर नामों के अलावा शेर भी लिखे जाते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर में तेजी आ गई है। 24 घंटों में मजीद 180 अफराद कोविड-19 का शिकार हुए हैं। सरगोदा में 41, मुल्तान 34 और खानेवाल में 23 अफराद में कोविड-19 की तस्दीक हो गई है। रहीम यार खान में 17, बहावलपुर 11 और डीजी खान में 6 अफराद मुतासर हुए, जबकि लोधरा में 5, मुजफ्फरगढ़ 4, खुशाब और लिया में 15-15 केसेस रिपोर्ट हुए। बिहाड़ी, राजनपुर और बहावलनगर में भी 3-3 केसेस सामने आए। नाज़रीन, डॉक्टरों ने कोरोना की चौथी लहर डेल्टा को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। माहिरीन कहते हैं इस लहर में कोरोना का शिकार होने वाले लोग तेजी से तशवीशनाक हालत तक पहुंच जाते हैं। एहतियात ना की तो मसाइल बढ़ सकते हैं। कोरोना की चौथी लहर इंडियन कोरोना वायरस को माहिरीन ने इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मुनीर अजहर चौधरी का कहना था कि इस वायरस का शिकार होने वाले मरीज जल्द ही तशवीशनाक हालत तक पहुंच जाते हैं। पहले वाले जो वायरस है उससे ये वेरिएंट अपनी इसकी जो ट्रांसमिशन है एक से दूसरे को लगने की सलाहियत वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा बहुत तेजी से फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही हैं। डॉक्टर मुनीर अजहर का मजीद कहना था कि ये वायरस तेजी के साथ मरीज के फेफड़ों और सांस की नाली को मुतासिर कर रहा है। अगर एहतियात ना की तो मसाइल बढ़ सकते हैं। इसकी जो अलामात हैं वो कोई ज्यादा मोहलत ही नहीं दे रही। हल्का सा नजला हुआ, जुकाम हुआ, गले की खराबी और बुखार हुआ और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनके फेफड़े जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब एक दफा इन्वॉल्व हो जाए और मॉडरेट डिजीज हो जाए तो उसके बाद हमारे भी बस में नहीं रहता। ये तो जल्दी से पकड़ी जाए बीमारी तो तब बहुत मुमकिन है। माहिरीन का कहना था कि वायरस से बचाव का बेहतरीन जरिया वैक्सीन और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतरला शारी, बहावलपुर।